We are live now. Good morning, everyone, and welcome to another session of Sustainable Saturday. I am your host, Sandra, and today we have with us Kajal. Kajal holds a master's degree in environmental science from the Institute of Science at Dr. Homi Baba University. She has a passion for environmental sustainability and has been actively contributing to the field for more than 1.3 years. Currently, she works as a project executive at Green Yatra. Her academic background, coupled with her practical experience, equips her with a deep understanding of environmental issues and a proactive approach to finding sustainable solutions. Today, Kajal here will be talking to us about sustainable transport, how this is an innovative concept in a way that it can help us be, more sustainable in our futures. And she will be explaining this topic in depth and will be explaining us to the different aspects of sustainable transport. So over to you, Kajal. आप आपका presentation and आप हमारे साथ आपके thoughts share कर सकते हैं. Thank you, Sandra, for the introduction. So let's start for the today's session, that is sustainable transportation. So in this session, I will be discussing about what is sustainable transportation, impacts of the traditional transportation, and then the sustainable transportation vehicles, sustainable transportation infrastructure, and sustainable fuels, and the benefits and also the related case studies. So let's begin. So, what is sustainable transportation? The simple definition for sustainable transportation is the transportation which is low and zero emission, energy efficient, and affordable to everyone, including the electric fuels as well as the alternative domestic fuels. So, sustainable transportation has many definitions, but I have included one definition from European Union Council of Ministry of Transport, which defines sustainable transportation as that allows the basic access and development needs to individuals, society, and communities that is made safely without harming the environment, also that is affordable to everyone, and that offers the choice of transport of mode and support the competitive economy, and that limits the emission within the planet's absorption capacity, that uses renewable sources at or below the rates of its generation, or uses non-renewable energy sources at or below the rates of generation of renewable resources, also while minimizing the impact on the land and on the generation of noise. So, what are the impacts of traditional transportation method? So, traditional transportation method के impacts environment पे है, social पे है और economic, तीनों चीजों पे इनके impacts है. तो let's start with environmental impacts. The first impact is air pollution. सो नाउअडेज की प्राइवेट व्हीकल्स का नंबर बहुत बढ़ गया है. इससे जो फॉसिल फ्यूल यूज होता है, जिसके कंबशन से इमिशन हो रहा है हार्मफुल पोल्यूटेंट्स का, जिसके वजह से क्या हो रहा है कि एयर क्वालिटी जो है वो बहुत खराब होती जा रही है. और अगर एयर क्वालिटी खराब हो रही है, इसका रिजल्ट ये आता है कि हमें हेल्थ डिसऑर्डर्स होने लगे, जैसे कि कार्डियोवेस्कुलर, रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स. The next impact is greenhouse gas emission. So vehicles contribute to the most uh, factor, that is carbon dioxide, which is the main component of greenhouse gases, which is released into the environment in the higher amounts. Then smog formation. When the pollutants from the vehicles released into the air, it reacts with sunlight and it forms ground level ozone and smog. This smog remains into the atmosphere for longer period of time, and it creates some health impacts such as irritation of eyes and some respiratory breathing problems. The next environmental impact is resource depletion. So, due to the increasing number of private vehicles, the use of traditional fossil fuels is increasing, and which is resulting into the resource depletion. The next factor is social impacts. So, the main contributing impact to the social society is traffic congestion.
Traffic congestion is happening because of lot of vehicles are lot of people are getting their own private vehicle. तो इसके वजह से क्या हो रहा है कि ट्रैफिक बढ़ रहा है, इससे फ्यूल कंजम्पशन जो है वो भी बढ़ रहा है, और जो भी कम्यूटर्स है उनको ज़्यादा टाइम, उनके डेली रूटीन का ज़्यादा टाइम वो ट्रैवलिंग में उनका रहता है, तो इसके वजह से उनके ऊपर स्ट्रेस और अदर हेल्थ इम्पैक्ट्स दिखाई दे रहे हैं। हेल्थ इम्पैक्ट्स में ये भी आता है कि जो लोग सराउंडिंग रोड्स के सराउंडिंग रहते हैं उनको स्लीप डिसऑर्डर्स हो जाते हैं नॉइस के वजह से, और पोल्यूशन के वजह से उन्हें रेस्पिरेटरी डिसीजेस भी होने चालू हो गए। नेक्स्ट इज सोशल इनइक्विटी। तो सोशल इनइक्विटी उन लोगों में दिखाई देता है कि जो लोग फाइनेंशियली अनस्टेबल है उन्हें जो इसेंशियल सर्विसेज है उसका एक्सेस नहीं मिलता, क्योंकि वो अपना खुद का प्राइवेट व्हीकल अफोर्ड नहीं कर सकते, फ्यूल कॉस्ट अफोर्ड नहीं कर सकते, और पब्लिक ट्रांजिट सिस्टम जो इतना वास्ट नहीं है, इसकी वजह से उन्हें ये इसेंशियल सर्विसेज का एक्सेस नहीं मिलता। इससे सोशल इनइक्विटी हो रही है। फिर नॉइस पोल्यूशन, ट्रैफिक होने के कारण लोग बार बार हॉकिंग करते हैं, इससे नॉइस पोल्यूशन बहुत बढ़ गया है। तो जो छोटे चिल्ड्रंस होते हैं, जो भी एल्डरली पीपल होता है, उनको नॉइस के वजह से बहुत प्रॉब्लम्स, हियरिंग प्रॉब्लम्स होना शुरू हो गया है। देन इकोनॉमिकल इम्पैक्ट्स। इकोनॉमिकल इम्पैक्ट्स में आता है डिपेंडेंसी ऑन फॉसिल फ्यूल। तो हमारे पास लिमिटेड सप्लाई ऑफ फॉसिल फ्यूल्स है। नंबर ऑफ व्हीकल्स, जैसे प्राइवेट व्हीकल, जैसे जो व्हीकल्स मोटराइज्ड इंजन के ऊपर चलते हैं उनको फॉसिल फ्यूल की जो लिमिट है वो कम हो रही है, क्योंकि ये व्हीकल्स को बहुत फॉसिल फ्यूल लगता है। तो इसके वजह से जो डे बाय डे जो फ्यूल कॉस्ट जो है वो भी इंक्रीज होता जा रहा है। प्लस प्रोडक्टिविटी लॉस ऐसे हो रहा है कि लोग ज्यादातर टाइम अपना प्रोडक्टिव टाइम ट्रैफिक में बिताते हैं, इसके वजह से उनका जो वो टाइम है जो वो कोई अलग एक्टिविटी के लिए यूज करते हैं, उनके बिजनेसेस में, उनके एजुकेशन में यूज कर सकते हैं बच्चे, तो वो उनका ज्यादातर टाइम ट्रैफिक के वजह से खराब हो रहा है। इसके वजह से ओवरऑल इकोनॉमिक इनएफिशिएंसी बढ़ रहा है। So what is the need for sustainable transportation? So first need is to preserve our environment by decreasing the greenhouse gases emission and mitigating the climate change. To enhance the social equity by promoting public transport and providing them access to all the essential services, encouraging the economic viability, improving the urban livability by decreasing the air pollution, noise pollution, and improving the air quality. Also conserving the natural resources by using alternative fuels such as electric vehicles and hydrogen self fuel vehicles, and encouraging the public transport system. Also achieving health and safety of the people by minimizing the pollution levels, becoming climate resilient, optimize the transportation cost through the use of public transport, carpooling, and reducing the long-term economic vulnerability with dependency on the non-renewable, by preventing the dependency on the non-renewable resources, encouraging innovation in the sector of transportation, and uh, promoting the sustainable infrastructure. So, these are the three components which evaluate whether your transportation is sustainable or not. The first component is particular vehicle used for a type of transport. Type of transport means whether it is air transport, land transport, or water transport. The next component is the source of energy, whether you are using renewable energy or non-renewable energy. And the third is the infrastructure to accommodate the transportation. This infrastructure also reflects on the affordability of a people, whether they afford the mode of transport or not. So here are some sustainable transportation fuels. First is biofuel. So it contains bioethanol, which is made from fermentation of sugary crops such as corn, sugar cane, and cellulosic materials. Then biodiesel, which is made from vegetable oil, animal fat.
नेक्स्ट इज हाइड्रोजन। हाइड्रोजन में आता है ग्रीन हाइड्रोजन। सो ग्रीन हाइड्रोजन इज प्रिपेयर्ड बाय कन्वर्टिंग इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू हाइड्रोजन। सिंथेटिक फ्यूल। सो सिंथेटिक फ्यूल में दो होता है, पावर टू गैस एंड सिंथेटिक लिक्विड फ्यूल। इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी में बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल जो सिर्फ बैटरी पे चलता है, उसमें बैटरी का ही ऑप्शन रहता है कि प्लग इन करो, चार्ज करो और फिर चलाओ। हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल होता है, उसमें दो ऑप्शन होता है, एक उसमें बैटरी का सेक्शन होता है और एक फ्यूल टैंक होता है। तो आप डिसाइड कर सकते हो कि आपको कौन सा पावर यूज करना है दोनों में से। देन नेक्स्ट इज नेचुरल गैस। नेचुरल गैस में लिक्विफाइड नेचुरल गैस और कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। कंप्रेस्ड नेचुरल गैस दैट इज सीएनजी, वो अभी बहुत सारे व्हीकल्स में यूज होता है, ऑटो रिक्शा में यूज होता है। उसी का फॉर्म होता है लिक्विफाइड नेचुरल गैस, लेकिन ये लिक्विड स्टेट में होता है। इसका एफिशिएंसी ज्यादा है क्योंकि वो सिमिलर फ्यूल टैंक की कैपेसिटी में थोड़ा ज्यादा डिस्टेंस कवर कर सकता है। और मोस्टली लिक्विफाइड नेचुरल गैस जो होता है वो शिप मतलब वाटर ट्रांसपोर्ट में काम आता है। नेक्स्ट इज सस्टेनेबल ट्रांसपोर्टेशन व्हीकल्स। सो फर्स्ट इज पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन। पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन को प्रमोट करेंगे तो उससे क्या होगा, प्राइवेट व्हीकल्स का जो नंबर होगा वो कम हो जाएगा, उससे एमिशन जो रहेगा वो भी कम हो जाएगा, और जो लोगों को एक्सेस मिलेगा, जो लोग ज्यादा कॉस्ट अफोर्ड नहीं कर पाते ट्रांसपोर्टेशन का, उनके लिए ये ऑप्शन बहुत ही बेनिफिशियल रहेगा, क्योंकि वो उनकी इसेंशियल सर्विसेज को एक्सेस उनको मिल जाएगा। नेक्स्ट इज इलेक्ट्रिक व्हीकल। इलेक्ट्रिक व्हीकल से जो नॉर्मल मोटराइज्ड व्हीकल जो फॉसिल फ्यूल्स यूज करते हैं उससे जो भी एमिशन होता है वो हम कम कर सकते हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल्स यूज करके। नेक्स्ट इज साइकिल और इलेक्ट्रिक बाइक। साइकिल और इलेक्ट्रिक बाइक से भी एमिशन कम हो जाएगा, और इससे हमारे हेल्थ के लिए भी बेनिफिट होगा क्योंकि हमारा एक्सरसाइज होगा साइकिलिंग, वॉकिंग, ई बाइक से। नेक्स्ट इज हाइब्रिड व्हीकल। हाइब्रिड व्हीकल इज द सेम विच हैज फ्यूल टैंक एंड इलेक्ट्रिसिटी स्टेशन। मतलब इलेक्ट्रिसिटी का एक पार्ट रहेगा बैटरी का, वो चार्ज करके वो भी यूज कर सकते हैं, या फिर जिसको एक्सेस नहीं है चार्जिंग सिस्टम का वो फ्यूल टैंक के लिए फ्यूल स्टेशन जाके फ्यूल डाल के चला सकते हैं। नेक्स्ट इज हाइब्रिड फ्यूल सेल व्हीकल। सो फ्यूल सेल व्हीकल यूजेस हाइड्रोजन गैस। नेक्स्ट इज कार पुलिंग एंड राइड शेयरिंग। कार पुलिंग और राइड शेयरिंग का ये बेनिफिट होगा कि जो चार लोग अलग अलग व्हीकल निकाल के एक ही जगह पे जा रहे हैं, वो अगर एक साथ जाए तो उनका मनी भी बच जाएगा, कॉस्ट भी बच जाएगा, और उनका टाइम बच जाएगा, और क्योंकि ट्रैफिक कम हो जाएगा, जैसे नंबर ऑफ व्हीकल्स रिड्यूस हो जाएंगे, ट्रैफिक कम हो जाएगा, टाइम कम हो जाएगा, और एमिशन के लिए भी एयर पोल्यूशन, नॉइस पोल्यूशन भी वो कम कर सकते हैं। तो कारपूलिंग और राइड शेयरिंग ये भी एक बेस्ट ऑप्शन है। सो सस्टेनेबल ट्रांसपोर्टेशन इंफ्रास्ट्रक्चर। सो पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन इंफ्रास्ट्रक्चर को ज्यादा बढ़ाना चाहिए। इंक्रीज द पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन इंफ्रास्ट्रक्चर विच कंटेन्स सबवेज, बस डेपोज, कार शेड्स एक्सेट्रा। देन साइकिलिंग इंफ्रास्ट्रक्चर। सो इसमें हम अलग डेडिकेटेड साइकिलिंग लेन बना सकते हैं, साइकिलिंग पाथ जिसपे सिर्फ साइकिल्स चला सकते हैं। इससे क्या हो जाएगा कि जो एक्सीडेंट्स के चांसेस है वो भी कम हो जाएंगे। और ई बाइक्स का एक स्टेशन हो जिससे लोग शेयर कर सकते हैं ई बाइक्स, कि अब हमारा राइड हो गया फिर लाके रखना, ऐसे ई बाइक स्टेशन होने चाहिए। देन इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन। फिर मिक्स्ड यूज डेवलपमेंट। मिक्स्ड यूज डेवलपमेंट ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसको स्मार्ट सिटी भी कहते हैं, कि जिसमें लोगों को उनकी सारी भी इसेंशियल जो सर्विसेज है वो वॉकेबल डिस्टेंस पे उनको मिल जाएंगी, ताकि उनकी जो ट्रैवल करने की जो नीड है वो रिड्यूस हो जाएगी, जिससे एमिशन, एयर पोल्यूशन, नॉइस पोल्यूशन और हेल्थ इम्पैक्ट सब पे इसका असर पड़ेगा। नेक्स्ट इज पेडेस्ट्रियन जोन्स और स्ट्रीट। तो ऐसे जोन्स जिसमें कार्स या फिर व्हीकल्स को पूरा अवॉइड करना है, उनको एंट्री बिल्कुल नहीं देनी है। तो जो भी करना है वो वॉकिंग, जॉगिंग, चल के ही करना है, ऐसे जोन्स।
ये भी एक सस्टेनेबल ट्रांसपोर्टेशन इंफ्रास्ट्रक्चर का पार्ट है। और द लास्ट इज वॉकिंग पाथ। सो वॉकिंग पाथ तो लोगों की एक्सरसाइज भी हो जाएगी, और ये एक बेनिफिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर का ऑप्शन है। So, ways to adopt sustainable transportation. So, we have to use or promote the use of public transport, also promote the use of carpooling and ride sharing, then promoting cycling, walking, electric vehicles, increase the use of electric vehicles, then telecommunicating and remote work, supporting the sustainable infrastructure such as cycling paths, walking paths, etc. Then choose sustainable fuels, educate and raise awareness. This is the main important way to adopt sustainable transportation, क्योंकि अवेयरनेस से बहुत सारी चीजें सॉल्व हो जाती है। सपोर्ट पॉलिसी चेंजेस, अगर गवर्नमेंट में कोई भी पॉलिसी निकाली सस्टेनेबल ट्रांसपोर्टेशन के लिए तो उसको सपोर्ट करना चाहिए। प्रायोरिटाइज सस्टेनेबल ट्रांसपोर्टेशन इन प्लानिंग एंड इन्वेस्ट इन अल्टरनेटिव ट्रांसपोर्टेशन मोड्स। सो यहाँ पे जो एक इमेज मैंने डाला है, वो इमेज सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, जिसमें फर्स्ट बताया कि अवॉइड। सो इसमें दो सर्कल्स है, एक बिग सर्कल है जिसके ऊपर क्रॉस किया है, मतलब ये जो सर्कल है ये ऐसे इंडिकेट करता है कि ऑल द इसेंशियल सर्विसेज आर वेरी फार फ्रॉम द पब्लिक एक्सेस। सो इससे क्या हो जाता है कि जो भी ट्रैवलिंग होता है वो लोगों को ट्रैवलिंग करके ये चीजों के पास जाना पड़ता है। इससे क्या हो रहा है, एमिशन बढ़ रहा है। अगर हम इसको स्मार्ट सिटी की तरह प्लान करेंगे, जैसे कि इनर सर्कल में बताया गया है कि पब्लिक एक्सेस से बहुत पास में है उसके सारे भी इसेंशियल सर्विसेज, तो उनको वो वॉकेबल डिस्टेंस से वहां पे वॉकिंग करके जा सकते हैं, जिससे एमिशन कम हो जाएगा क्योंकि उनका ट्रैवलिंग का नीड कम हो जाएगा। So it is social sustainability. Then shift. We have to shift from vehicles which uses non-renewable energy to the vehicles which uses renewable energy, as well as the public transport, because public transport carries lot of people at one time. So shift from personalized vehicles to non motorized and public transport, that is economic sustainability. The next is improve. We have to improve the habit of using fuel, which kind of fuel we are using, whether it is renewable or non-renewable. So we should use renewable sources of energy, that is electric vehicles, also hydrogen vehicles and CNG. So improve and promote innovation technology to uh, products alternative fuel for energy effi- efficiency. So environmental sustainability, this is environmental sustainability. नेक्स्ट, बेनिफिट्स ऑफ सस्टेनेबल ट्रांसपोर्टेशन मेथड। सो इसमें भी हम एनवायरमेंटल बेनिफिट्स क्या है, इकोनॉमिकल बेनिफिट्स क्या है और सोशल बेनिफिट्स क्या है ये देखेंगे। सो एनवायरमेंटल बेनिफिट्स में आता है लोअर एमिशंस। सो जैसे ही हम रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज से नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज से रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ शिफ्ट करते हैं, तो जो एमिशंस होता है पोल्यूटेंट्स का वो डायरेक्टली कम होना स्टार्ट हो जाएगा। और एक हम कर सकते हैं कि इससे डिक्रीज कार्बन फुटप्रिंट। तो अभी नाउ जो ट्रेडिशनल ट्रांसपोर्टेशन से जो भी कार्बन फुटप्रिंट जो आ रहा है उससे हम कम कर सकते हैं बाय यूजिंग रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज, दैट इज सस्टेनेबल ट्रांसपोर्टेशन यूज करके हम ये कार्बन फुटप्रिंट कम कर सकते हैं। नेक्स्ट इज इकोनॉमिक बेनिफिट। इसमें आता है जॉब क्रिएशन। तो इसमें हम लोकल कम्युनिटीज को जॉब भी प्रोवाइड हो जाएगा। ऐसे इंडस्ट्रीज में जो इंडस्ट्रीज रहेंगे कि सस्टेनेबल फ्यूल्स के इंडस्ट्रीज रहेंगे, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का इंडस्ट्रीज रहेगा, या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर जो रहेगा सस्टेनेबल ट्रांसपोर्टेशन का इंफ्रास्ट्रक्चर, उसमें भी जॉब अपॉर्चुनिटीज लोकल कम्युनिटी को मिल जाएगा। कॉस्ट सेविंग इन द लॉन्ग रन। अभी हमें ये पता है कि सस्टेनेबल व्हीकल मतलब इलेक्ट्रिक व्हीकल लो, लेकिन उसका प्राइस ज्यादा होता है, लेकिन फर्स्ट हमें ज्यादा इन्वेस्ट करना पड़ा, लेकिन उसका बेनिफिट लॉन्ग रन में है। जैसे ही हम इलेक्ट्रिक व्हीकल लेंगे तो इससे इमिशन कम होगा, इमिशन कम होगा तो हेल्थ इम्पैक्ट्स भी कम हो जाएंगे, लोगों की हेल्थ इंप्रूव हो जाएगी, और जो हेल्थ चेकअप्स पे जो भी मनी कॉस्ट लगता है वो कम हो जाएगा। इस तरह से ये कॉस्ट सेविंग है लॉन्ग रन के लिए।
रेजिलियंस टू एनर्जी प्राइस वोलेटिलिटी। अभी जो हम देख रहे हैं कि पेट्रोल डीजल के जो प्राइसेस है वो दिन ब दिन बढ़ते ही जा रहे हैं, तो अगर हम नॉन रिन्यूएबल एनर्जी को अवॉइड करें और रिन्यूएबल एनर्जी को यूज करें तो हम ये जो कॉस्ट बढ़ रहे हैं उसको हम स्टॉप कर सकते हैं। तो रेजिलियंस टू एनर्जी प्राइस वोलेटिलिटी। द थर्ड इज सोशल बेनिफिट्स। सोशल बेनिफिट्स में फर्स्ट आता है कि हेल्थ इम्प्रूवमेंट। सो इसमें क्या हो जाएगा, इमिशन एयर पोल्यूशन जैसे कम हो जाएगा तो लोगों के जो हेल्थ रिलेटेड इश्यूज है वो कम हो जाएंगे। ट्रैफिक अगर कम हो जाएगा तो जो भी कम्यूटर है उसका जो ट्रैवलिंग टाइम है वो कम हो जाएगा, उसका टाइम बच जाएगा। तो रिड्यूस ट्रैफिक कंजेशन से नॉइस पोल्यूशन भी कम हो जाएगा, जिससे लोगों को हियरिंग प्रॉब्लम्स जो होते हैं वो कम हो जाएंगे। इक्विटेबल एक्सेस हम ऐसे कर सकते हैं कि अगर हमने पब्लिक ट्रांजिट सिस्टम को बढ़ा दिया, उसको प्रमोट ज्यादा कर दिया, उसके नंबर्स बढ़ा दिए, तो जो भी फाइनेंशियली अनस्टेबल कम्युनिटी है वो उनके अपॉर्चुनिटीज उनको मिल जाएगी कि वो भी इसेंशियल सर्विसेज जैसे कि एजुकेशन है, हॉस्पिटल्स है, जॉब्स है, उसके लिए उनको एक्सेस मिल जाएगा। तो ये इक्विटेबल एक्सेस हम प्रोवाइड करा सकते हैं सस्टेनेबल ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू। और फिर कम्युनिटी लिवेबिलिटी, इससे क्या हो जाएगा कि हम एयर पोल्यूशन कम कर सकते हैं, नॉइस पोल्यूशन कम कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा कि लोगों को एक हेल्दी और फ्रेश एनवायरनमेंट मिलेगा रहने के लिए। तो इससे कम्युनिटी लिवेबिलिटी भी हमें एक बेनिफिट मिलता है सस्टेनेबल ट्रांसपोर्टेशन मेथड से। So the image with three circles represents that sustainable transportation system helps social responsibility, solving mobility problems. Also, it is helping the economy, improving the transport efficiency, and it is helping the environment, achieving the environmental safety, making environment more friendly. देन द पिरामिड। सो अभी जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम चल रहा है इसके लिए जो ये फर्स्ट वाला पिरामिड है दैट इज अपराइट पिरामिड। सो इसमें ज्यादा प्रेफरेंस दिया गया है पर्सनल ट्रांसपोर्ट के लिए, उससे कम प्रेफरेंस है कार शेयरिंग, टैक्सी, ऑटो रिक्शा। फिर उससे कम रेफरेंस पब्लिक ट्रांसपोर्ट को है, और बहुत ही लिस्ट जो नंबर है वो साइकिलिंग और वॉकिंग का है। अगर हमें एक हेल्दी एनवायरनमेंट के तरफ जाना है, सस्टेनेबल ट्रांसपोर्टेशन अगर हम चूज करते हैं ओवर ट्रेडिशनल ट्रांसपोर्टेशन, तो हम इस पिरामिड को इनवर्ड पिरामिड कर सकते हैं, जिसमें हम वॉकिंग, साइकिलिंग को ज्यादा प्रेफरेंस देंगे, या फिर उसके बाद पब्लिक ट्रांसपोर्ट को प्रेफरेंस देंगे, उसके बाद कार शेयरिंग शेयरिंग राइड शेयरिंग, और एकदम लीस्ट एक्सपीरियंस हम पर्सनलाइज व्हीकल्स को देंगे। इससे पूरे ओवरऑल एनवायरनमेंट को भी बेनिफिट होगा, ह्यूमन हेल्थ को भी बेनिफिट होगा, हमारा मनी, हमारा टाइम, सब कुछ सेव हो सकता है। सो मैंने दो केस स्टडीज यहाँ पे ऐड किए, उसमें फर्स्ट केस स्टडीज टोक्यो का है। सो टोक्यो में ये बहुत मतलब इट इज वेरी बिजिएस्ट सिटी। सो जापानीज गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया कि यहाँ पे ये सिटी में सबसे जो दो बड़े स्टेशन है वहाँ पे जो कम्यूटर्स रहते हैं उनका जो नंबर्स है वो बहुत ज्यादा है। तो उन्होंने ये दो स्टेशन के बाहर 25 स्क्वायर मीटर का पीजो इलेक्ट्रिक एनर्जी जनरेटिंग फ्लोरिंग टाइल्स लगा दिए। तो जो भी कम्यूटर्स यहाँ से आते जाते हैं तो उनके जो फुटफॉल से जो भी पावर क्रिएट होता है वो ये जब भी ये टाइल्स से गुजरेंगे तो उनका जो फुटफॉल का पावर रहेगा वो उसको इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करेंगे और फिर उसको यूज करेंगे। तो वैसे ही इन्होंने जो टिकट टर्न टाइल्स रहते हैं उसके सामने ये फ्लोरिंग टाइल्स लगा दिया। तो इन्होंने ऑब्जर्व किया कि उनको एक दिन में 1400 किलोवाट पर सेकेंड पर डे एनर्जी लोगों के फुटफॉल से जनरेट हुआ, जिससे उन्होंने कैपेसिटर्स में स्टोर करके रखेंगे और फिर आगे टिकट गेट्स पे, इलेक्ट्रिक लाइट बल्ब पे, डिस्प्लेस पे वही एनर्जी को यूज करेंगे। तो दिस इज द वेरी बेस्ट ऑप्शन फॉर सस्टेनेबल ट्रांसपोर्टेशन, जिसमें हम कोई भी इलेक्ट्रिसिटी वगैरह कुछ ज्यादा यूज नहीं कर रहे हैं, जो मैन पावर है उसका हम यूज कर रहे हैं। नेक्स्ट केस स्टडी इज
बोगोटा सिटी का है। तो बोगोटा सिटी ने 2022 में सस्टेनेबल ट्रांसपोर्टेशन अवार्ड जीता था। तो ये उन्होंने कैसे अचीव किया? तो उन्होंने कोविड 19 के टाइम पे 84 किलोमीटर्स का इमरजेंसी बाइक लेन्स चालू किया। उसमें बाइक लेन्स मतलब स्पेसिफिकली इलेक्ट्रिक बाइक्स, साइकिल्स एक्सेट्रा। और फिर कोविड 19 के बाद उन्होंने उसमें से 28 किलोमीटर्स जो बाइक लेन था वो परमानेंट कर दिया। इससे इसके वजह से क्या हो गया कि उनका जो बाईसाइकिल यूसेज था वो फोर फोल्ड इंक्रीज हो गया। फिर उनका एक स्ट्रैटेजी प्लान है, सिटी स्ट्रैटेजी प्लान 2022-24। इसके अकॉर्डिंग वो ये कहते हैं कि वो बाइक्स का जो यूसेज है वो 2024 तक 50% और इंक्रीज करेंगे, और वो इसकी तरफ एफर्ट्स भी ले रहे हैं। फिर उन्होंने प्रीवियसली जो कार सेंट्रिक जोन थे, जहाँ पे कार्स व्हीकल सब अलाउड था, उनको उन्होंने पेडेस्ट्रियन फ्रेंडली जोन्स में कन्वर्ट कर दिया, जहाँ पे कार्स को बिल्कुल भी अलाउड नहीं रहेगा, सिर्फ वॉकिंग जॉगिंग आप कर सकते हैं। फिर उन्होंने 1485 इलेक्ट्रिक बसेस इंट्रोड्यूस किया। उसके उससे क्या हो गया, बोगोटा जो हो गई टॉप 3 इलेक्ट्रिक बसेस में से एक सिटी हो गई। और उसमें उन्होंने बाद में करंटली अभी उनके 350 इलेक्ट्रिक बसेस ऑपरेशनल है। encouragement of carpooling through high occupancy vehicles, exemption फ्रॉम द ऑड इवन लाइसेंस रेस्ट्रिक्शन प्रोग्राम। मतलब इन्होंने लाइसेंस दे दिया है ऑड इवन, तो ऑड डेज पे ये नंबर्स लाइसेंस वाले लोग अपना कारपूलिंग के लिए व्हीकल्स यूज कर सकते हैं। इवन डेज पे इतने ये वाले लोग अपना व्हीकल कारपूलिंग के लिए यूज कर सकते हैं। इसके वजह से क्या हुआ कि उनको वीकली उनका 2 मिलियन किलोमीटर कार ट्रेवल रिड्यूस हो गया, जिससे उनका इमिशन भी बहुत कम हो गया। इसके अलावा उन्होंने ट्रैफिक क्लेमिंग मेजर्स, स्पीड मैनेजमेंट मेजर्स के प्रोग्राम्स भी इम्प्लीमेंट किए। उन्होंने 20% ट्रैफिक डेथ्स में 2019 में 20% डिक्रीज किया है उन्होंने ट्रैफिक डेथ्स में, फ्रॉम एज कम्पेयर टू 2015-18। और आगे उन्होंने 2020 में और 28% तक ट्रैफिक डेथ्स डिक्रीज किया है। ऑल्सो उन्होंने फोकस्ड किया है स्कूल स्टूडेंट्स के सेफ्टी पे बाय उनका जो स्कूल ट्रिप्स है उन्होंने 58% उन्होंने ऑन फुट उनका ट्रिप्स किया है। इस तरह से उन्होंने ये सारे मेजर्स लेके सस्टेनेबल ट्रांसपोर्टेशन का अवार्ड 2022 में जीता है। सो अगर हमें अगर सस्टेनेबल बनना है तो सस्टेनेबल ट्रांसपोर्टेशन भी एक इसका एक मेन पॉइंट है जिससे हम सस्टेनेबिलिटी की तरफ बढ़ सकते हैं। थैंक यू। थैंक यू सो मच काजल, बहुत इंटरेस्टिंग एंड बहुत क्रिस्प प्रेजेंटेशन था। इट वाज वेरी टू द पॉइंट, और आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है द इम्पोर्टेंस, द डिफरेंट सॉर्ट्स ऑफ यूजेस, स्पेशली जो केस स्टडीज मेंशन किए हैं। केस स्टडीज ऐसे सर्व हो सकते हैं कि हम देख सकते हैं कि दूसरे कौन से कंट्रीज में दूसरे लोगों ने क्या किया है, उस हिसाब से हम फिर हमारे कंट्री में भी ये सारी चीज़ें इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। एंड एज यू राइटली सेड है ना कि एजुकेशन एंड अवेयरनेस, दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, बिकॉज एजुकेशन अवेयरनेस होगा तब जाकर ये सारी चीज़ें इम्प्लीमेंट हो सकती है। सो इट वाज अ ग्रेट प्रेजेंटेशन, काफ़ी इंफॉर्मेटिव था। एंड थैंक यू सो मच काजल, आपने हमारे साथ टाइम बिताया एंड हमें इतना अच्छा टॉपिक समझाया इतने अच्छे से। एंड थैंक यू सो मच ऑडियंस कि आप सब ने ये सेशन अटेंड किया। आई होप यू एंजॉयड इट, एंड आई होप टू सी यू नेक्स्ट सैटरडे। थैंक यू। थैंक यू सो मच।